یہ میری زندگی کی بہت بڑی ڈیل تھی۔ میرے سامنے رکھے شیشے کی ٹیبل پر 5 لاکھ کا چیک رکھا تھا۔ میں نے ایک نظر سامنے بیٹھی اس عورت پر ڈالی جو مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہونٹوں میں دبا ہوا سگریٹ سیدھے ہاتھ کی دونوں انگلیوں میں لیا اور دھواں ہوا میں اڑایا اور سامنے رکھے ایشٹرے پر بجھا دیا۔ میں نے وہ چیک لیا اور اس عورت کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کی شان و شوکت دیکھ کر مجھے تو لگا تھا کہ میرے اس کام کی رقم مجھے کچھ معقول ملے گی، لیکن اونچی دکان کا یہ پھیکا پکوان تو مجھے کچھ زیادہ ہی پھیکا لگ رہا ہے۔ میں نے چیک پر درج رقم دیکھ کر کہا۔ وہ عورت بولی کہ یہ ایڈوانس ہے، باقی کے 32 لاکھ کا چیک کام ہونے کے بعد ملے گا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک رات کے 32 لاکھ! میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کون تھا۔ میں کیا کوٹھے میں پلنے بڑھنے والی ہر لڑکی کو بس یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ماں کون ہے، کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ کون ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالی تو مرجان بیگم کو دیکھا تھا، گا کر اپنے وہ عورت جو خود کو میری ماں کہتی تھی، تیز میک اپ کیے، منہ میں پان دبائے رکھتی، ہارمونیم اور ڈھول کی آواز شام ڈھلے ہی شروع ہو جاتی تھی۔ کوٹھے کے بڑے سے صحن میں سفید چاندنیاں بچھی ہوتی تھی جن کے اطراف سرخ رنگ کے گاؤ تکیے رکھے ہوتے تھے اور ایک اسٹیل کا پائدان بیچ میں رکھا جاتا اور صحن کے اطراف میں اگربتیاں جلا دی جاتی تھی۔ اندھیرا چاہتے ہی شہر کے بیچوں بیچ کا یہ بڑا بازار یوں ہوتا جیسے دن چڑھایا۔ شہر کے سبھی امیرزادے، رئیس، نواب کی آمد شروع ہو جاتی۔ چاروں طرف سے ڈھول اور ہارمونیم کی آوازیں آنے لگتی، عورتیں رقص کرتی اور اس کے مداح ان پر پیسے لوٹانے لگتے۔ یہ سب دیکھ کر میں بڑی ہوئی تھی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میری ماں مجھے ناچ گانا رقص سب سکھا چکی تھی۔ میں نے پہلا رقص 18 سال کی عمر میں کیا تھا۔ میرا حسن دیکھ کر وہاں بیٹھے رئیس اور نواب سادے آنکھیں جھپکانا بھول گئے تھے۔ میں نے اپنا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا رکھا تھا، اسی لیے مردوں کی بےتابیاں مجھے دیکھ کر بڑھنے لگی۔ میں رقص کر کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ آج میری ماں نے میرا پہلا سودا کرنا تھا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بے شک میں ایسے ماحول میں پلی بڑی تھی، مگر تھی تو ایک لڑکی ہی، اسی لیے کچھ جھجک اور پریشانی فطری تھی۔ میرے کمرے میں آنے والا پہلا مرد ایک 50 سالہ بڈھا تھا۔ منہ میں پان دبائے، نشے سے ڈگمگاتے قدم بڑھتا ہوا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس سے دیکھ کر الجھن محسوس ہونے لگی، لیکن جس جگہ سے ہمارا تعلق تھا وہاں کہاں ہماری پسند دیکھی جاتی ہے، بس پیسہ دیکھا جاتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں جب اس بڈھے نے میری کلائی زور سے پکڑی تو میں نے اسے پیچھے دھکا دے دیا۔ میری حرکت پر اس شخص نے زور سے میری کلائی پکڑ لی اور بولا، مجھے نخرے دکھاتی ہے؟ پورے 2 لاکھ دیے ہیں مرجان بیگم کو اس رات کے۔ صبح وہ شخص جا چکا تھا، لیکن اس دن مجھے اپنے آپ سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور روتے روتے کہہ رہی تھی کہ کاش میں ایسے گندے ماحول میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ جو اذیت میں برداشت کر چکی تھی وہ میرے لیے ہر رات کا عذاب تھا۔ شروع میں نے اپنی ماں مرجان بیگم کو منع کر دیا۔ مجھے اس کام سے گھن آتی ہے۔ مجھے آنکھیں نکال کر کہنے لگی، اے چھوری، تو کون سا نیا کام کر رہی ہے؟ ارے یہاں پر رہنے والی ہر چھوری یہی سب کچھ کرتی ہے۔ زیادہ نخرے دکھائے گی تو جانتی ہے اس کی سزا کیا ہے۔ یہ کہہ کر مرجان بیگم نے سامنے کھڑے دلال کی طرف اشارہ کیا جو انکار کرنے والی لڑکیوں کو مار مار کر ان کا حشر نشر کر دیتا تھا۔ میں اس وقت چپ ہو گئی، لیکن یہ سوچ چکی تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ انہی دنوں نئی لڑکیاں ہمارے مہمان خانے پر آئیں۔ مرجان بیگم کی ساری توجہ ان لڑکیوں پر تھی۔ میرے پاس بھاگ جانے کا یہ نایاب موقع تھا۔ میں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور رات کے اندھیرے میں چھت پر چلی گئی۔ وہاں سب کوٹھیوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی اور ان پرانی بوسیدہ کوٹھے کی عمارتوں کے پیچھے ایک سنسان گلی تھی۔ وہاں کم ہی کسی کا گزر بسر تھا۔ میں وہاں کود گئی۔ میں خود پر کالی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد اس بازار حسن سے نکلنا۔ مجھے یہ زندگی نہیں گزارنی تھی۔ میں نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے آج تک باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں باہر کیسے نکلوں گی۔ بنا کسی راستے کا تعین کیے میں روڈ تک پہنچ گئی۔ پھر مجھے اس بات پر افسوس ہونے لگا کہ میں تو خالی ہاتھ آ گئی تھی۔ کاش کہ مرجان بیگم کی الماری سے چند ہزار ہی چرا کر لے آتی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب ایک ٹیکسی میرے پاس آ کر رکی۔ میں بری طرح گھبرا کر پیچھے کو ہٹی۔ اس شخص نے مجھے سر تا پیر دیکھا اور کہنے لگا، کہاں جانا ہے مجھے بتا۔ میں نے کہا اسٹیشن۔ اس نے کہا چھوڑ دوں گا۔ میں اسی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ وہ شخص جب تک ٹیکسی چلا رہا تھا مشکوک نظروں سے مجھے ہی دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کہیں سے بھاگ کر آئی ہو؟ اس کی اس بات پر مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں تو میں تو دوسرے شہر سے آئی ہوں، واپس جا رہی ہوں۔ وہ میرا حلیہ دیکھنے لگا۔ آج میں نے ہی شام کو رقص کیا تھا، اسی لیے ابھی تک فینسی میکسی میں ملبوس تھی۔ اسے اپنی ٹیکسی اسٹیشن کے پاس کھڑی کر دی۔ میں نے فوراً سے پچھلا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی۔ وہ کہنے لگا، اے لڑکی، میرے پیسے دو، پورے 300 روپے۔ میں نے کہا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص ہتے سے اکڑ گیا، مجھ پر چیخنے چلانے لگا۔ اس شخص کے شور شرابے پر وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، بنا پیسے دیے یہ لڑکی میری ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور اب کرایہ مانگ رہا ہوں تو کہہ رہی ہے پیسے نہیں ہے۔ وہاں موجود لوگوں میں ایک نوجوان بھی تھا جو دیکھنے میں کافی امیر لگ رہا تھا۔ میں رونے لگی تو اس نوجوان نے ٹیکسی والے کو پیسے دے دیے اور مجھ سے کہنے
कहने लगा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मुझे ट्रेन का टिकट ले दो, मुझे किसी दूसरे शहर जाना है। मैं अभी उससे बात कर ही रही थी जब एक गाड़ी वहाँ आकर रुकी और जो शख्स गाड़ी से नीचे उतरा उसे देखकर मैं अपने होश खो बैठी। वो मेरे ही कोठे का दलाल था, मुझे खूनखार आंखों से देख रहा था। उसने मुझे बाजू से पकड़कर गाड़ी में धकेला। मैं वापस उसी जहन्नुम में जा चुकी थी। मुझे उस दलाल ने बहुत मारा, यहाँ तक कि मेरा चेहरा तक बिगाड़ कर रख दिया। मेरे हाथों पर जलते कोयले रख दिए गए। मैं बिलबिला उठती थी। मरजान बेगम को खुद को मेरी माँ कहती थी, एक सफाक औरत थी। कहने लगी, अब अगर भागने का सोचा तो उससे ज्यादा बुरा हाल करूंगी। मेरा भी जख्म भी ठीक नहीं हुए थे कि एक रात मरजान बेगम ने गाहक को भेज दिया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो वही नौजवान था जिससे मैं स्टेशन पर मिली थी, जिस टैक्सी वाले को मेरा किराया दिया था। कहने लगा, तो तुम यहाँ से भाग कर जाना चाहती थी? मैंने सर हिलाया। वो मेरे जख्मी चेहरे का ताज्जुब से देखने लगा। कहने लगा, ये लोग तो बहुत जालिम है। मैंने कहा, मुझे इन लोगों से रिहाई दिलवा दो, मैं तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। वो कहने लगा, ये इतना आसान नहीं है। मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, तुम चाहो तो तुम्हें फिल्म की हीरोइन बना सकता हूँ। जब तुम्हारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे तो तुम यहाँ से चली जाना। मुझे उस शख्स की बात ठीक लगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं एक दलदल से निकलकर दूसरी दलदल में जा रही। उस शख्स ने जब मरजान बेगम से बात की तो वो खुशी से मान गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक फिल्म बनाने के लिए मुझे कितने कुर्ब से गुजरना पड़ेगा, कितने लोगों के साथ रातें काली करनी पड़ेंगी। बहरहाल मेरी पहली ही फिल्म ने धूम मचा के रख दी, लेकिन मेरे सारे पैसे मरजान बेगम रख लेती थी। मेरे हुस्न के लोग दीवाने हो गए थे। मैं ये जान चुकी थी कि मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी, इसीलिए दिल को समझा लिया था। वक्त यूं ही गुजरने लगा और मैं लोगों के दिलों पर राज करने लगी। अब मैं हर आम और ऐरे गैरे मर्दों की दस्तरस से दूर बड़े बड़े बिजनेसमैन और सियासतदान ही मेरे ग्राहकों में शामिल थे। जब भी किसी बड़े बिजनेसमैन ने किसी से बिजनेस डील पर साइन करवाना होता तो वो मुझे ही भेजता और मैं साइन करवा कर ही लाती थी। मैं एक रात की 1 लाख लेती थी और फाइल साइन करवाने के पैसे अलग से लेती थी। उन्हीं दिनों इलेक्शन का शोर उठने लगा, इसीलिए मेरी मांग भी बढ़ गई, क्योंकि अक्सर नए अछूते सियासतदान टिकट लेने के लिए मेरा इस्तेमाल करते थे। उस दिन मैं एक सियासतदान के फार्म हाउस पर जा रही थी। उसका ड्राइवर मुझे लेकर जा रहा था। आज मौसम भी काफी खुशगवार था। जब से मैंने इस लाइन में कदम रखा था बहुत से लोगों से मेरे ताल्लुकात बन चुके थे। अब मैं सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन और सियासतदानों के पास ही जाती थी। उनके बड़े बड़े महल्लात जैसे घर देख मेरा दिल भी हवाओं में उड़ने लगता। पैसे की चमक शायद कुछ ऐसी होती है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब गाड़ी फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई। वो फार्म हाउस इतना खूबसूरत बनाया गया था कि मैं देखकर आंखें झपकना ही भूल गई थी। स्विमिंग पूल भी साइड पर बना हुआ था। गाड़ी पोर्च में खड़ी हुई थी तो एक मुलाजिम ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। मुझे लगा मैं कोई बहुत खास शख्सियत हूँ। मैं लहंगा पकड़कर गाड़ी से नीचे उतरी और ऊंची एड़ी वाली हील पहने टिक टिक करती घर के अंदर चली गई। घर के आता यूं लगता था जैसे ताज महल हो। मुझे लाउंज में बिठा दिया गया। मुझे फोन करके यहाँ बुलाया गया था। जिस शख्स ने मुझे यहाँ बुलाया था मैंने अब तक उसे देखा नहीं था। शाम का अंधेरा फैल रहा था। एक मुलाजमा जूस का ग्लास पकड़े मेरे पास आई। अभी मैं जूस पी ही रही थी कि सामने से एक इंतहाई स्मार्ट खूबसूरत सी औरत चलती हुई आई, जो यकीनन इस फार्म हाउस की मालिका थी। मुझे हैरत हुई। आज से पहले जिधर भी गई थी वहाँ पर मर्द हजरात ने ही मेरा इस्तकबाल किया था, मगर यहाँ कुछ उल्टा ही हिसाब लग रहा था। जहन में कई तरह के ख्यालात आ रहे थे कि शायद ये औरत कुछ और मुझसे चाहती हो। मैं कुछ तजब्जुब में पड़ गई, या फिर कहें उसने अपने शौहर के फार्म हाउस पर अचानक से छापा ही न मारा हो और मुझे भी जलील करके यहाँ से न निकाल दे। मेरा दिल इस वक्त बहुत जोरों से धड़क रहा था। मैंने आधा जूस का ग्लास वापस सामने रखे शीशे के टेबल पर रख दिया और खड़ी हो गई। लेकिन वो औरत मेरे पास आकर मुझे बैठने के लिए कहने लगी। बात वो नॉर्मल अंदाज से कर रही थी। मेरा हाल अहवाल पूछने लगी। चेहरे पर भी जारहाना तासुरात नहीं थे, इसीलिए मैं बैठ भी गई। इसके बाद चुनचुशाफ उस औरत ने मुझ पर किया। मैं हैरान रह गई। कहने लगी कि उसने मुझे यहाँ बुलाया है। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए दंग सी रह गई। कोई भी औरत ऐसी दयालु तो नहीं हो सकती, अपने शौहर के लिए खुद से एक बाहर की औरत को घर बुलाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इससे क्या बात करूं, क्योंकि मुझे तो एक सियासतदान का नाम बताकर ही यहाँ बुलाया गया था। जब मैं चुप रही तो बात का आगाज उस औरत ने किया। कहने लगी, मैंने ही तुम्हें अपने शौहर का नाम लेकर बुलाया है। मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफें सुनी है। मेरा शौहर एक सियासतदान होने के साथ साथ एक कामयाब बिजनेसमैन भी है, और वो क्या और किधर किधर गुल खिलाता है मैं उसे बहस में नहीं पड़ूंगी। वो जाने उसके अमाल, और मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत से कॉन्ट्रैक्ट तुमने ही उनके साइन करवाए हैं जहां वो चाहते थे। मैंने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि यही सच है। वो शख्स मेरा पुराना ग्राहक था। मैं उसके बहुत से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा चुकी थी। मैंने कहा, आपको मुझसे क्या काम? वो कहने लगी, वो सियासत में आना चाहती है, लेकिन उसका शौहर उसकी मदद करने को तैयार नहीं। उसे सियासत में आने के लिए टिकट चाहिए जो उसे एक बड़े लीडर से मिल सकता है। और मसला ये था कि वो लीडर सिफारिश पर टिकट देने के बजाय मेरिट की बुनियाद पर टिकट दे रहा था और किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने भी एक लंबी सी सांस ली। अब मैं सारी बात समझ चुकी थी। जहन से धड़का खत्म हुआ तो मेरा दिमाग फिर से चलना शुरू हो गया। मैंने कहा, मैं उसे टिकट ले दूंगी, लेकिन पैसे ज्यादा लूंगी। उस औरत ने मेरे सामने 5 लाख का चेक रख दिया। मैंने तासुब से उसे देखा और नफी में
सर हिलाया। ये कम है। उसने कहा काम होने के बाद मुझे 32 लाख रुपए और देगी, लेकिन मैं इतनी रकम का उस पर एतबार नहीं कर सकती थी। मैंने कहा मैं पूरे पैसे एडवांस लूंगी। वो औरत उठकर अंदर गई और थोड़ी ही देर बाद पैसे लाकर मेरे हाथ पर रख दिए। अब तक मेरा वास्ता सिर्फ मर्दों से पड़ा था, लेकिन उस औरत को डील करता देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने पैसे पकड़े और काम करने का वादा करके उठकर चली गई। मुझे खुद पर भरोसा था। मैं जितनी मशहूर हो चुकी थी, जिसे कॉल करती सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझे इनकार करे। मैंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए और मतलूबा शख्स से मिलने के लिए वक्त ले लिया। उसने कहा वो बहुत बिजी रहता है, इसीलिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। मैंने कहा मुझे बस एक मुलाकात करनी है। मुझे अपने हुस्न पर बेहद नाज था। मैं जानती थी कि मैं एक बार उस शख्स से मिलूंगी तो उसे अपना असीर बना लूं। उस शख्स ने बड़ी मुश्किल से मुझे एक बहुत बड़े होटल के रेस्टोरेंट में बुलाया, वो भी शाम की चाय पर। मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहने बहुत दिल से तैयार होकर गई। मैं वक्त मुकर्ररा पर पहुंची तो सामने वो शख्स अपने गार्ड्स के साथ पहले से मौजूद था। मुझे देखते ही उसने घड़ी पर नजर डाली। जब तक मैं उसकी टेबल पर पहुंची वो मुझे कहने लगा, आप 5 मिनट लेट है मिस। मैं सामने बैठ गई। वो शख्स भी मेरे मुकाबिल कुर्सी पर बैठ गया। देखने में काफी यंग था, लेकिन ज्यादा प्रोटोकॉल में नहीं था। उसने कीमती किस्म का लिबास पहन रखा था। मैंने उसके गार्ड्स की तरफ देखा और कहा कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरी बात को समझते हुए उसने गार्ड को इशारा किया, जो मुझे उस होटल के कमरा नंबर 415 में ले गया। मैं कमरे में बैठकर इंतजार करने लगी, मगर कोई न आया। थोड़ी देर बाद कमरे में एक साइड की दीवार अपनी जगह से हिलती हुई महसूस हुई। मैं हैरान रह गई कि वही शख्स अब मेरे कमरे में मौजूद था, जहाँ थोड़ी देर पहले एक मजबूत दीवार नजर आ रही थी। अब वहाँ से पीछे का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने अपने आने का मकसद बयान किया। मैंने कहा मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए एक टिकट चाहिए, इसके बदले जितनी रातें आप चाहे मैं आपके नाम कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई। कहने लगा, अगर तुम औरत न होती तो मैं तुम्हारे मुंह पर बहुत जोर का थप्पड़ मार देता। शर्म नहीं आती तुम्हें मुझसे इस किस्म की बातें करते हुए? ये सुनकर तो मैं दम बखुद रह गई। कहने लगा, मैं औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो तुम जैसी ही क्यों ना। और ये मेरी तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट ही थी कि तुम्हारे कहने पर मैंने तुम जैसी 2 टके की हीरोइन को चाय की पेशकश कर दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यूं अपनी कीमत लगाओगी और मेरी नजरों में गिर जाओगी। इलेक्शन की टिकट मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दूंगा जो उसके अहल होते हैं। रह गई रात गुजारने की बात, तो वो मैं अपनी शादी के बाद अपनी बीवी के साथ एक जायज ताल्लुक के साथ भी गुजार सकता हूँ। अब आप जा सकती हैं। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर कह रहा था और मैं पहली बार ऐसा शख्स ऐसी कुर्सी पर बैठा देखा था। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा, मुझे बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। हम 2 टके की लड़कियों को 2 टके का बनाने वाला कौन है? मेरी बात पर वो मुझे गौर से देखने लगा। मैंने कहा, शायद आपके पास इसका जवाब नहीं। आप अगर वाकई मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो पहले बाजारे हुस्न को खत्म करें। आप औरत को इज्जत देने की बात करते हैं तो सबसे पहले कोठे में बैठी औरतों को इज्जत देने की कोशिश करें। लेकिन आप जैसे दौलतमंद की हवस का नतीजा है ये बाजार अब तक कायम है। ऐसी औरतों की कफालत करें जो अपने और अपने घर वालों का पेट भरने के लिए अपना तन बेचने पर मजबूर हैं। ऐसे मर्दों की गर्दनें उड़ाते हैं जो औरत को बिकने पर मजबूर करते हैं। मैं भी इज्जत से जीना चाहती थी, मगर बदकारी से इनकार करने पर मुझे मारा जाता रहा। भागने की कोशिश की तो मुझे मार मार कर जख्मी कर दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं था। आप इज्जत की बात करते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपनी इज्जत मुझ जैसी 2 टके की लड़की को बनाना चाहेंगे? यकीनन नहीं, क्योंकि हम जैसी लड़कियों को आप जैसे मर्द सिर्फ दिल बहलाने के लिए इस्तेमाल करके पुराने टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। और बीवी बनाने के लिए आपको एक ऊंचे खानदान की इज्जतदार लड़की चाहिए होती है, जिसके साथ कदम से कदम मिलाकर आपको फख्र महसूस हो। ये कहकर मैं रुकी नहीं थी, वहाँ से वापस चली गई। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। हैरत की बात थी कि उस शख्स ने मेरी बात खामोशी से सुनी। उस औरत के पैसे उसे लौटा दिए। 4-5 दिन किसी काम पर नहीं गई, अपने उसी बोसीदा कमरे में बैठी रही। सोचा तो यही था कि 32 लाख मिलेंगे तो अम्मा को नहीं दूंगी, एक कमरे का सही लेकिन अपना घर ले लूंगी। लेकिन मेरे नसीब में शायद ये सब लिखा ही नहीं था। 4 दिन बाद पुलिस की एक रेड हुई। सब लड़कियों को दारुल अमान में भेज दिया गया। दलालों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। मैं हैरान थी कि ये सब हो क्या रहा था। कुछ दिन बाद वही लीडर खुद दारुल अमान में आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ अगर आपको एतराज ना, और बेफिक्र रहें, वो निकाह खुफिया नहीं होगा। मैं उसे शर्तर सी होकर देख रही थी। क्या वाकई आज के दौर में ऐसे मर्द भी होते हैं?